Okay, Jai Hind everyone. I am ex-gentleman cadet Shiv Pratap Singh Rana. I was in OTA SS 115 course and I was AIR 33 of CDS 1 2021. So today, as you can see with the thumbnail, we are going to discuss about the recent GD topics for SSB interview, which have been recently asked in various SSBs like 18 SSB Allahabad and 34 SSB Allahabad. So let us start. I'll give you a brief note about it. What is that topic, and then you can prepare accordingly. So as you all know that preparing for this SSB interview, it is a rigorous and multifaceted endeavor for all the officers, those who are there, and you need to have very good communication skills, leadership ability, and candidates, they need to familiarize themselves in order to prepare themselves better, because we all know that it is a very tough process, and if you are not well prepared, then there would be problems. So like we all know that in GD there are the topics they are given over there, and then you are given 3 leads, right? So and then you have to choose one lead and you need to defend that. A word of caution over here is, for example, we have the first topic, India's priority should be. So first one is research and development, second one is employment, and third one is military technology. So while डिस्कशन इन दी SSB, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल इंडियाज़ प्रायोरिटी शुड बी, आपके हिसाब से आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट, तो वंस यू डिसाइड एम्प्लॉयमेंट यू नीड टू स्टिक टू दिस थिंग, मतलब आपको इसी पे बोलना है, इसी को डिफेंड करना है. हो सकता है कोई दूसरा इंसान होगा वहाँ पे, जो दूसरा जेंटलमैन होगा, ही माइट बी स्पीकिंग ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हो. इन द सेम मैनर सेकेंड टॉपिक इज़, कैन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल बी अचीव्ड थ्रू, कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो. बैलेंस डाइट हम सब ने पढ़ा, 8th क्लास की बेसिक साइंस है बैलेंस डाइट. स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल का एक बर्निंग इशू है, अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीपल आर इनटू मच मोर स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ऑन अ राइज, एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, ये भी हम सबको पता है, वेरियस पैकेजेस फ्रॉम डिफरेंट पैथोलॉजिकल लैब्स आर प्रेजेंट. तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली आए. नेक्स्ट हम देखते हैं. ओके, सिंगल मेजर चैलेंज फॉर इंडिया. So first one is climate change, cross-border terrorism and unemployment. So for example, you have chosen that according to you, single major challenge for India is cross-border terrorism. So in GD1 of GTO, you must stick to this thing only. Climate change हो सकता है आपके लिए climate change हो, cross-border terrorism ये भी हो सकता है, और unemployment ये भी हो सकता है. Next topic is what should be the strategy for poverty alleviation, right? गरीबी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. एजुकेशन एक्सेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन का एक्सेस मिले ताकि वो अपने स्किल्स, लीडरशिप, इन सब को डेवलप कर सकें. अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको मौका मिले रोज़गार का ताकि आप पैसा कमा पाएँ. मेंटल एंड फिजिकल वेल बींग, सी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आजकल नए डायनामिक्स बहुत जुड़ रहे हैं. वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू डायनामिक्स. So here it is saying mental and physical well-being. So if someone is mentally and physically well, then how can this thing help? Like poverty alleviation can happen. So for example, you can speak, if someone would be mentally and physically fit, he'll be able to study well, utilize the opportunities well, and then further move on. How can we ensure food security? First one is about educating farmers. So like we all know that farmers are not very much educated about the hybrid seeds, right? They are not very much aware about various cash crops. So do we think that educating farmers by using hybrid seeds, this will ensure food security, because food would be there in ample amount. Second is disaster management readiness. So readiness simply means preparedness. So for example, there is flood and whole of the crops they have been destroyed by it. जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उससे जो हमारी खेती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके सिचुएशन में क्या करना है, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेडीनेस. देन नेक्स्ट इज इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. अगेन वेरी डायनेमिक थिंग, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. तो जब किसी चीज़ को, किसी भी क्रॉप का जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल वीट, अब वीट के स्टोरेज में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं.
कि उनमें बहुत तरीके के कीड़े लग सकते हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं, सड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है। तो ये इन तीनों में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है और फिर उसको जस्टिफाई करना है कि आपको आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक है। द ओनली थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड, एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जिस टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं आप उसी पे स्टिक रहिए जीडी में। नेक्स्ट इज़ हाउ कैन ग्लोबल पीस बी प्रमोटेड। ग्लोबल पीस, यहाँ पे हम इंडिया के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। तो ग्लोबल पीस कैसे हम ला सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे पहला है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। एज यू ऑल नो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी ये एक पॉलिसी है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, MTCR एंड ऑल। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी कि हम सारे कंट्रीज़ को बोलें कि आप अपने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप उनको हटा दो और फिर उससे ग्लोबल पीस आ सकता है। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लाइक इन टुडेज टाइम वी आर having a very good external affairs minister and the way he answers things, that is very important for our SSB also। वो कैसे हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, उनसे कैसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब क्या होता है? सिंपल, जैसे हमने देखा था कि नेपाल में एक बार बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, है ना, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी, आर्मी एंड एयरफोर्स, जल्दी से लिख देते हैं, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया था। उसको हम शॉर्ट में HADR भी बोल देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। तो इन चीज़ों से भी हम ग्लोबल पीस को क्या है, प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे आसपास के किसी कंट्री में कोई अर्थक्वेक आया और हमने उसकी हेल्प की, तो दो कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छी सिचुएशन बनी, एक अच्छा सा उनको एक मौका मिला साथ में आने का, बात करने का, है ना। तो ये इसके आगे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जिन पे आपको बेसिक्स चीज़ें आनी चाहिए। तो इससे पहले तो हमने देखा कि जैसे 3 लीड्स मिलती हैं वो हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला है द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न वॉरफेयर। सो आई होप आप सबको पता होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर है क्या। जैसे आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे हैं जहाँ पे आप देखोगे कि एक यूक्रेन का सोल्जर जो है वो एक ड्रोन ऑपरेट कर रहा है और वो रशिया के सोल्जर को कोई नुकसान पहुँचा रहा है ना। तो और इसमें अगर ऐड ऑन कर दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने एक रोबोट को माउंट किया हुआ है और उसका जो इंटेलिजेंस है, उसमें जो कोडिंग या जो डेटा फीड है वो ये है कि अगर आपको इस तरीके के वेपन्स लेके कोई अपोजिट साइड से आता हुआ दिखे तो यू विल जस्ट शूट एंड यू विल किल और एलिमिनेट दैट पर्सन, ठीक है। तो ये तो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है मॉडर्न वॉरफेयर में, कैसे हम लोगों को अपने दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज़ अप टू योर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में क्लाइमेट चेंज का कैसे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सी बात समझते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है, और ऐसे ही जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स हैं, जनरली भी वहाँ पे फ्लड्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है एंड दे आर कमिंग टू आवर कंट्री इंडिया। नाउ व्हाट डू यू फील, क्लाइमेट चेंज तो हुआ वहाँ पे, अब इसका इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पे आया या नहीं आया, आएगा या नहीं आएगा, प्लीज़ गिव इट अ थॉट। तो ज़रूर आएगा, क्योंकि वहाँ से लोग आ रहे हैं। अब हो सकता है अच्छे लोग भी आएँ उनके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे लोग आएँ जो हमारे कंट्री को कुछ नुकसान पहुँचाना चाहें, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाएगा। इसके बहुत सारे डायनेमिक्स हो सकते हैं जो कि आप अपने अपने लेवल पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द डिजिटल एज। इसको भी एक अगर छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो वी हैव सीन कि हमारे जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं हमारे घर में, हमारे दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, या इवन सम ऑफ आवर पेरेंट्स, दोज हु आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द डिजिटल थिंग्स, तो उनके साथ कई बार आपने देखा है कि फ्रॉड रिपोर्ट होता है कि फ़ोन पे या किसी भी और चीज़ के थ्रू उनके अकाउंट से कुछ पैसे काट लिए गए, उनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि कई बार वो जो ट्रांजैक्शंस हैं करते किसी और को हैं, हो किसी और को जाता है। ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड्स अ लॉट मैनी थिंग्स सच एज किसी के कोई प्राइवेट वीडियोस फोटोज़ आपने रिकॉर्ड किए, अकॉर्डिंगली आप एंड यू वर ट्राइंग टू यूज़ इट एज अ थ्रेट,
आपका कोई ऐसा डेटा किसी ने चोरी किया जो फ्यूचर में आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इज वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली द फीमेल फ्यूचर ऑफिसर्स। वुमेन इन कॉम्बैट रोल, लाइक रिसेंटली आपने देखा कि वुमेन आर गिवन कमांड, previously they were not given commands, now they are given command, now they are also given permanent commission, otherwise they were in only in medical area, which is the AMC, they were in the permanent commission role. Now we are trying that they should also come in combat roles. Now you have seen 3 flying officers of the Indian Air Force, ladies, those who are going into combat roles, becoming fighter pilots, right? So now you can you have to discuss various things, that what could be the impact of this thing, what are the positives of these things, what could be some negative aspects of this thing, could be, if you feel like, what could be the conclusion, meaning how this can be beneficial for us, and ultimately how would be able to manage it, how would it be managed. So all of these things. Next is the future of space warfare. You must be aware about a thing. चाइना ने एक टेस्ट किया था जिसमें उसने क्या किया था कि अपना ही एक सैटेलाइट, ठीक है, अपने ही एक सैटेलाइट को उसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ से अर्थ से एक मिसाइल मार के, ठीक है। हमने भी वो किया, हमारे पास भी है। और भी ऐसा हो सकता है कि हम स्पेस में कोई गनशिप माउंट कर दें, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस वॉरफेयर, कि हम स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं वॉरफेयर के लिए बेसिकली। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, राइट। सो ऐसा माना जाता है कि बिफोर 1991, बिफोर द कोल्ड वॉर, द वर्ल्ड वॉज अ बाईपोलर प्लेस, ठीक है, बाईपोलर, जहाँ पे एक साइड में कौन था, USSR, और दूसरे साइड में कौन था, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो मतलब क्या था बेसिकली इसका, कि पावर सेंटर्स 2 थे। अब आज के टाइम पे क्या लगता है, देर आर मेनी पावर सेंटर्स। चाइना सेज दैट इट इज़ पावरफुल, US सेज दैट इट इज़ पावरफुल, रशिया it is powerful, and we are the powerful people of the world, right? I mean to say India. So India's foreign policy in a multipolar world, like we have balanced both Iran and Israel, right? Some of you might feel that we are with Israel, some of you might feel we are with Iran, but as you all know that Iran is a country with whom we don't have any enmity, right? So managing both of them, managing USA, the United States of America, and Russia, right? So this is how India's foreign policy in a multipolar world. Next is the impact of social media on society, right? एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर तो आपको करना है, हम तो बस यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, राइट। वेन एवर वी गेट समथिंग गुड, फॉर एग्जाम्पल वी हैव परचेज्ड अ व्हीकल, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने BMW परचेज़ कर लिया, ठीक है, तो आप उसको तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, राइट। यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। आप कहीं डिनर के लिए जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, बट वेन एवर देर इज समथिंग रॉन्ग विच हैज़ हैपेंड विद यू, आप बहुत दुखी हो, डू यू पोस्ट इट? नो। सो क्या इम्पैक्ट बनाया हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने ये इम्पैक्ट बना लिया कि मेरे को छोड़ के सबकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बढ़िया है ना। कोई BMW खरीद रहा है, कोई डिनर कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, मैं ही हूँ जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है उस चीज़ का जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसे ही और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, आपने ब्लड डोनेशन किया, यू पोस्टेड अ वीडियो, आपने कोई सोशल वर्क किया, यू पोस्टेड अ वीडियो, सो वेरियस इम्पैक्ट्स विच यू हैव टू डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म, ट्रेंड्स एंड रिस्पॉन्सेज। सी इट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग, ग्लोबल टेररिज्म। एक तो है हमारा सिंपल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान से कोई आया हमारे कंट्री में, उसने अटैक किया, हमने उसको काउंटर किया, न्यूट्रलाइज़ किया। ग्लोबल टेररिज्म जो है वो क्या है कि आप एक वर्ल्ड ओवर नेटवर्क समझ रहे हो टेररिस्ट्स का। फॉर एग्जांपल एक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्स मान लेते हैं,
So it has various networks in this country, in this country, in this country, in this country. यहाँ का कोई लोकल नेटवर्क है, टेररिस्ट नेटवर्क वाई, वो इससे मोटिवेशन ले रहा है, ये उसको गाइड कर रहा है, ऐसे ही ये यहाँ वाले को भी गाइड कर रहा है, यहाँ वाले को भी गाइड कर रहा है। मतलब एक तरीके से एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी है टेररिज्म की, जो कि ग्लोबल लेवल पे, जिसके लिए कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, वो वहाँ पे टेररिज्म कर रहा है। ये मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं आप देख रहे हो कि हिजबुल्ला है, हुथी है, ठीक है, हमास है, इनके क्या ट्रेंड्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सेज इनके लिए हो सकते हैं इनको काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द डिफेंस सेक्टर। सो वी ऑल नो दैट इफ़ योर इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग, राइट, then your defense sector would also be strong. Why? Because you need money to prepare for weapons, right? And if you don't have money, then you won't be able to prepare well. So all of these things you need to take care. So economic reforms and their impact on the defense sector. So if we'll get through the economic reforms, our economy would rise, we will have more money to invest in the defense sector as well, isn't it? तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? You have to think. I am not here, I'll not explain everything to you. These are the topics, I am telling you the basic things. You also think. आप अपनी कैपेबिलिटी के भी हिसाब से सोचो, ठीक है? पैसा हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी मॉडर्न ड्रोन्स बना सकते हैं, राइट? एंड अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इजराइल के कौन से ड्रोन्स हम ऑपरेट कर रहे हैं? वी हैव टेकन सम ड्रोन्स फ्रॉम देम, राइट? हम फाइटर प्लेन्स भी बना सकते हैं, हम मॉडर्न मैकेनिक्स के बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं जो यूज़ कर सकते हैं, ओनली इफ़ वी हैव मनी। हम IITs और वेरियस अदर कॉलेजेस में प्रमोट कर सकते हैं इसको, है ना? नेक्स्ट है द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, हाउ वेल UN इज़ वर्किंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो मुद्दा चल रहा है, या ईरान वर्सेस इजराइल का जो मुद्दा चल रहा है, क्या आपको लगता है UN वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है या हो सकता है, या उसका आप क्या रोल समझते हैं? आपको क्या लगता है कि वो कितना बेहतर इस चीज़ में है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द एथिक्स ऑफ ड्रोन वॉरफेयर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद एथिक्स? मूल्य आपके ड्रोन वॉरफेयर। आप एक ड्रोन उड़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल उड़ा सकते हैं। आपने किसी सिविलियन के घर के आसपास बम फेंक दिया, उसकी डेथ हो गई, अनएथिकल। कितना एथिकल है ड्रोन वॉरफेयर? किस किस को आप उससे मार सकते हैं, कौन एनिमी है? ड्रोन से क्या आप केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स डिलीवर कर रहे हैं? वो भी एक एस्पेक्ट है। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन यूथ। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP? बहुत खबरों में था, जिसमें ये 10+2+3 वाले पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। क्या किया गया था आप बताइए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ये जैसे आपको बहुत सारी वैरायटी देता है चीज़ें चुनने के लिए, है ना? चीज़ों से मेरा मतलब है यहाँ पे आप अपने क्या क्या सब्जेक्ट चुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। फिज़िक्स के साथ आप करंट पॉलिसी में हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? 11th-12th में आप 10th तक ही पढ़ सकते हैं, बट ये आपको उस चीज़ की भी फ्रीडम देता है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें सही हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हम ड्रोन्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम कुछ ड्रोन्स को एक एरिया में भेज के क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे भूकंप आ सकता है कि नहीं आ सकता, फ्लड हो सकती है कि नहीं हो सकती, या जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे क्या ये हो सकता है कि कोई एवलांच आए और पहले से पता चल जाए? क्या हम ड्रोन माउंट कर सकते हैं? ठीक है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्या हम बेहतर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं? जैसे आपको पता होगा कि कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया, वहाँ का जो कुछ भी कम्युनिकेशन था, जैसे मोबाइल नेटवर्क था, वो ख़राब हो गया, तो उससे लोग बता ही नहीं पाए कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या हेल्प चाहिए। इसके अलावा क्या हम उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं ताकि उन तक अच्छे से मदद पहुँचाई जाए? ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है इंडियाज़ अप्रोच टू रिन्यूएबल एनर्जी। आई होप आप सबको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं और वहाँ पे इंडिया का अप्रोच कैसा रहेगा। सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया। जैसा अभी हमने देखा, एजुकेटिंग फार्मर्स एजुकेटिंग फार्मर्स, फॉर एग्जाम्पल
फार्मर्स जो हैं वो लोन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं हमारे, हमने देखा है, और कई बार गवर्नमेंट उनका लोन जो है वो वेव ऑफ भी करती है, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर ही अगर हम हर गांव में एक किसी ऐसे इंसान को रख सकें जो एक एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट हो, या एटलीस्ट साइंटिस्ट ना भी हो तो जो बेसिक उनको बता सके कि आप ये चीज़ें उगाइए, ये फ़ायदेमंद होगा, तो क्या उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या गवर्नमेंट को लोन माफ़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, या वो खुद सस्टेन कर जाएंगे? इसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फार्मर्स, इट हैज़ वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, जैसे कि आप जो लैंड है उसको आप किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप उसमें कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करो ताकि वो सस्टेनेबल रहे, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, वेरी बर्निंग इशू, और आप सबको पता है कि आप दिन रात जो चीज़ें देखते हैं उसके हिसाब से आपके जो ओपिनियन हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो आज का मीडिया कैसे काम कर रहा है और वो किस तरीके से अपने पब्लिक ओपिनियन जो है उसको शेप कर रहा है, मतलब उसको मोल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, तो आप देखोगे कि एक बार फेसबुक के ऊपर ये आरोप लगा था कि दे हैव ट्राइड टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप व्हेन फर्स्ट टाइम ही वाज इलेक्टेड। नेक्स्ट, इंडियाज़ रोल इन टैकलिंग ग्लोबल पॉवर्टी। सो अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम क्या कर पाएंगे इस पे। कहीं ना कहीं हम अपने आप को पॉवर्टी से दूर करने में शायद अभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। टैकलिंग ग्लोबल पॉवर्टी, सो मीनिंग कि यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया क्या कर सकता है ग्लोबली पॉवर्टी को दूर करने के लिए, ठीक है। कि हम जैसे आप सबको पता है कि हम यूएन में वी आर द लार्जेस्ट टू गिव यूएन पीस कीपर्स, है ना, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से हैं यूएन पीस कीपर्स, तो वो ग्लोबल सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया क्या रोल कर सकता है, क्या रोल निभा सकता है, जैसे हम अपने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को वेरियस अदर कंट्रीज़ की हेल्प के लिए भेज सकते हैं, अपने यहाँ से हाइब्रिड सीड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ और कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर का जो इक्विपमेंट है वो आगे दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन, इज़ इट वर्थ द कॉस्ट? आपको क्या लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल आई फील दिस, यस इट इज़ वर्थ द कॉस्ट। उसी तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब क्या है, बेसिकली आप डिफाइन करिए वहाँ पे कि जो स्पेस है हमारा, जैसे जो लैंड पार्ट है फॉर एग्जांपल, वो तो सबका कब्जा है, ये इनका। स्पेस में स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब स्पेस को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वेरियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे सैटेलाइट भेज के देखा जाए कहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा काम कर रहा है, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए। उसके साथ साथ वहाँ पे हम कोई गनशिप माउंट कर सकते हैं क्या, वहाँ से हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, तो ये सारा एस्पेक्ट जो है ये आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ एनजीओज इन सोशल डेवलपमेंट। तो इस पे आपका व्यू कि एनजीओज जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं और क्या उनका इम्पैक्ट होगा, रोल क्या होगा उनका सोशल डेवलपमेंट में। जैसे आपने एक एनजीओ का नाम सुना होगा, गूंज, ठीक है, तो ये एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है और उसके बारे में आपको बताना है आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है इंडियाज़ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल टेंशंस। रीजनल टेंशंस हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या क्या टेंशंस हो रही हैं और इंडिया का उसमें क्या रोल होगा, ठीक है। तो रीजनल टेंशन मतलब क्या है, वो हमसे नहीं भिड़ रहे हैं, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि हमारा एक नेबर है बांग्लादेश, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा कि एक मिलिट्री कू हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो इंडिया कैसे प्रिपेयर्ड है अगर, और हमने वहाँ के लोगों को, वहाँ से कोई आया हमारे यहाँ पे, उनके जो भी लीडर्स हैं जिनको हमने शेल्टर दिया, तो क्या हमें लगता है कि हमने सही किया, और अगर उस वजह से हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आर वी रेडी फॉर दैट, राइट। So these were some of the recent topics for SSB interview and these are very much helpful for you all. I hope that I have communicated to you the importance of it and basics of it. बाकी आप practice करते रहिए and take care of yourself. Jai Hind everyone.